Good morning, children. Today we will start with the topic that is Introduction to Chemistry. Right? So, children, for you guys, as a new subject, science, chemistry is one of its branches. I have already told you that science की 3 branches होती हैं. Okay? Biology, physics and chemistry. Biology का introduction हम पहले ही पढ़ चुके हैं. Now we are getting into chemistry. So, name itself tells you beta, chemistry is the study of chemicals. Okay, chemicals हमने नाम सुना है, काफी familiar है. हम हमारी लाइफ में न जाने कितने chemicals day to day यूज करते हैं, right from the morning जब हम हमारा ब्रश करना स्टार्ट करते हैं तब से लेकर के रात को डिनर तक हम न जाने कितने chemicals यूज करते हैं, right? So a chemical is any substance made of matter that is solid, liquid or gas, that has constant chemical composition and characteristic properties. Okay, so beta for chemical it is very specific. उसका composition भी constant होता है और उसका properties भी constant होती हैं, predefined होती हैं. Examples are iron, water, ऑक्सीजन एक्सेट्रा एंड मैनी मोर. अगर आप सोचने बैठेंगे तो आपको खुद को लगेगा कि यस हम कितने केमिकल्स अपनी लाइफ में यूज कर रहे हैं. नाउ इंटरेक्शन ऑफ दीज केमिकल्स. ओके, दीज केमिकल्स इंटरैक्ट विद ईच अदर whenever they come close to each other, either solids, liquids, gases or solid with liquid, liquid with gas, they interact with each other and these interactions are called as reactions, chemical reactions. Okay, so chemical reactions में जो substances react करते हैं they are called as reactants और वो substances जो reaction के बाद finally हमें मिलते हैं they are called as products. So children, coming on to exact definition of chemistry, that is it deals with the study of structure, composition and properties of substances. किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, मीन्स वो कौन कौन से एलिमेंट से मिलके बना है और कौन सा एलिमेंट किस क्वांटिटी में है, राइट? और अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस का क्या स्ट्रक्चर है, राइट? और क्या प्रॉपर्टीज है. नाउ who is a chemist? The person who studies chemistry या who specializes in chemistry. अभी chemistry की भी बहुत सारी branches है बेटा, fine, but that we will get into later. For now, a person who as a whole gets into any kind of branch of chemistry, who studies any branch of chemistry is called as chemist. Fine. Now, next is pharmacist. आपने काफी ये कॉमनली सुना होगा, कहीं बोर्ड्स पे पढ़ा भी होगा, दिस फार्मेसी या फार्मासिस्ट. सो हु आर दे? ओके, सो दीज आर आल्सो अ काइंड ऑफ केमिस्ट ओनली बेटा. दे बेसिकली गेट इनटू हेल्थ केयर. ओके, सो दे आर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हु प्रैक्टिस फार्मेसी. Pharmacy is your structured study of medicines. How to use medicines, how the medicines are formed, that all falls in the category of pharmacy. And the people who study pharmacy, who specialize in pharmacy are called as pharmacists. Fine. Now we are getting into importance of chemistry. हम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं या लोगों ने इसे पढ़ा है. What is the reason behind? What is the importance of this subject? Okay, so फर्स्ट इम्पोर्टेंस इज इन मेडिसिन. हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं, राइट? हमें सबको पता है मेडिसिन के अंदर कितने तरह के, आप कोई भी मेडिसिन के लीफ उठा के देखिए या कोई सिरप का बॉटल है वो देखिए, यू विल सी इंग्रेडिएंट्स में जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उसमें आप देखेंगे तो कुछ केमिकल्स के नेम लिखे होंगे, उनकी क्या क्वांटिटी है वो लिखा होगा, राइट? सो केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मेडिसिन. फाइन. हम अलग अलग टाइप के मेडिसिन लेते हैं, एंटीसेप्टिक्स यूज करते हैं, एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, एनेस्थेटिक्स यूज करते हैं, राइट?
substances or the chemicals which are used during surgeries to unconscious the patient or its one or the other body part. Okay, so that is an anesthetic. Now other uses in various blood tests. Okay, हम जो काफी सारे टेस्ट करवाते हैं अलग अलग, उन टेस्ट में भी केमिकल्स का यूज होता है. देन इन एग्रीकल्चर वेरी इंपॉर्टेंट, केमिस्ट्री हर जगह है बेटा. ओके, सो इन एग्रीकल्चर आप कहेंगे वहां पर तो क्या हो रहा है, सीड्स डाल रहे हैं, सीड्स ग्रो इनटू प्लांट्स. यहाँ कहाँ केमिस्ट्री है, यहाँ तो पूरी बायोलॉजी है, राइट. बट इट्स नॉट लाइक दैट, यहाँ भी केमिस्ट्री है. कैसे है? केमिस्ट्री इज एज fertilizers. Fertilizers are the chemical substances which are used to improve the fertility of the soil. Okay, and plant yield अच्छी हो सके, crop yield अच्छी हो सके, उसके लिए fertilizers use करते हैं. Then fungicides, insecticides, herbicides, these are the chemical substances to prevent unwanted growths on those plants. Fungicide जो हैं वो chemicals हैं जो कि unwanted fungus की growth को prevent करते हैं. Insecticides unwanted insects के आने को prevent करते हैं. Herbicides unwanted plants की growth को prevent करते हैं, right? So that's how chemistry is into agriculture also. Then in preservation of food, food preservation भी chemistry के through किया जाता है. कैसे? Because these days chemicals are used in various food items. आपने बड़ों को कहते हुए भी सुना होगा, ज़्यादा ये पैकेज्ड फूड वगैरह मत खाओ, इनमें केमिकल आता है. तो वो केमिकल क्यों आता है? Because that chemical acts as preservative. Okay, so that's how preservatives help in the preservation of food. Then your safe use of chemicals, ये भी हमें केमिस्ट्री से ही पता चलता है कि किस केमिकल को, अगर हमें उसका कैरेक्टर नहीं पता होगा, अगर हमें उसका कॉम्पोजिशन नहीं पता होगा, तो क्या हमें पता होगा कि इस केमिकल से हमें कोई हार्म हो सकती है या नहीं? नो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि केमिकल्स का हमें स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज पता हो, सो दैट व्हाइल यूजिंग हम ध्यान रख सकें दैट हाउ वी हैव टू यूज इट. और मेडिसिन में भी उनके कॉम्पोजिशन के बेसिस पर हमें बताया जाता है कि आपको ये मेडिसिन इतनी ही लेनी है, राइट. सो दैट आल्सो इट फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ सेफ यूज ऑफ केमिकल्स. Then comes your extraction of petrol, diesel and compressed natural gas (CNG). इनके जो एक्सट्रैक्शन होते हैं बेटा, वो भी इसी के थ्रू होते हैं, हमारे केमिकल रिएक्शंस के थ्रू होते हैं. इन्हें प्योरेस्ट फॉर्म में हम नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं. नेचर में ये ऐसे अलग से नहीं पड़े होते, यहाँ पेट्रोल रखा है या डीजल रखा है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट बेटा. ये सब मिक्स्ड फॉर्म में होते हैं और फिर इस मिक्स्ड फॉर्म को केमिकल रिएक्शंस के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जाता है अलग अलग टाइप्स में, राइट. देन अलॉयज बनाए जाते हैं. अलॉयज आर बेसिकली बेटा मिक्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स. ओके, अलग अलग मेटल्स को मिक्स करके अलॉय बनाए जाते हैं. अलॉय का एग्जाम्पल है स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज एक्सेट्रा, राइट. सो दीज आर सर्टेन इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री दैट वी कैन लिस्ट आउट ओवर हियर. बट इसके अलावा भी बहुत है. केमिस्ट्री न जाने, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे रूटीन में केमिस्ट्री बहुत जगह पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. देन वी हैव टू कम अपॉन द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. हमने पहले ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ा, कितनी सारी ब्रांचेस थी, राइट. सिमिलरली केमिस्ट्री की भी बहुत सारी ब्रांचेस है. If you look at the page number 8 of your book, then there different branches of chemistry are given, right? So main branches की अगर हम बात करें तो बेटा केमिस्ट्री की 3 main branches हैं: inorganic chemistry, organic chemistry and physical chemistry, right? Inorganic chemistry, it is the study of elements and compounds.
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट इज द स्टडी ऑफ ओनली कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, कार्बन इज अ टाइप ऑफ एलिमेंट और जिन भी कंपाउंड्स में, जिन भी केमिकल सब्सटेंसेस में कार्बन प्रेजेंट है, अगर हम उसकी स्टडी में इन्वॉल्व हैं, दैट मीन्स हम कौन सी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स की स्टडी हम अगर करते हैं, उनके कंपाउंड्स की स्टडी अगर हम करते हैं, तो दैट इज योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देन वी कम अपॉन फिजिकल केमिस्ट्री। सो फिजिकल केमिस्ट्री इंटरप्रेट्स chemical processes in terms of physical properties of matter such as mass, motion, heat and electricity. So we can say physical chemistry is a combination of physics and chemistry. ओके, वहाँ पर आकर के वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री को एक ही लेवल पे ला करके स्टडी किया जाता है, केमिकल कंपाउंड्स के फिजिकल एस्पेक्ट्स को, फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जाता है, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, सो एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। ओके बेटा, ये सब टर्म्स आपको सुनने के लिए नई लग रही होंगी, but that's fine, it's okay, eventually we will learn the details of these things, fine. So element वो होता है जिसमें एक ही टाइप के सारे एटम्स प्रेजेंट हैं, मीन्स ऑक्सीजन है तो सारे ऑक्सीजन के ही एटम्स हैं, आयरन है तो आयरन के ही सारे एटम्स हैं, so that is an element. Now it cannot be broken down into two or more similar substances by physical or chemical methods, ठीक है, क्योंकि ये तो सेम ही एटम्स से मिलकर के बने, तो इसके सेग्रीगेशन की या सेपरेशन की कोई सिचुएशन है ही नहीं। पर दूसरी साइड पे अगर हम कंपाउंड की बात करें, तो यस, कंपाउंड इज मेड अप विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स बट इन अ सर्टेन कांस्टेंट composition. Okay, that is a pre-decided composition. Now there are certain specialized branches of chemistry as well, that is agricultural chemistry, then biochemistry, then industrial chemistry and nuclear chemistry. So आपको इनके नेम से ही पता चल रहा होगा, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री वेयर द केमिस्ट्री डील्स विद द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चरल पार्ट, जैसा हमने अभी इम्पोर्टेंस में पढ़ा था। देन बायोकेमिस्ट्री व्हेन विच डील्स विद द केमिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हमारी बॉडी में भी न जाने कितने केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, राइट। देन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद द chemical production of raw materials and the development, study and control of industrial chemical processes and products. Then last is nuclear chemistry. It deals with the nucleus of an atom, as you can see in the diagram, right? कैसे एक एटम का स्ट्रक्चर होता है, उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर ऐसे राउंड्स होते हैं, दीज आर ऑल इमेजिनरी थिंग्स, ओके, एंड उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बेटा ये सब चीज़ें आप इवेंचुअली समझेंगे, राइट। फॉर नाउ प्लीज जस्ट लिसन टू मी वॉट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग। A pathologist is the person who finds the causes of a disease or death, right? So these are the different branches of chemistry. I hope they are very clear to you. Thank you, children.